गुड मॉर्निंग। यूनियन बैप्टिस्ट चर्च ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज के वचन में देखेंगे भविष्य के बारे में। भविष्य क्या कहता है? दरअसल इब्रानी 13 का 5 में आखिरी में कहता है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। हम ब्रदर जोनाथन, ब्रदर शाम से सीखेंगे हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है। इससे पहले हम वर्शिप में जाएंगे। हमारे बीच वर्शिप टीम में हमें वर्शिप में आगे बढ़ाएंगे। Hallelujah.
May this life that I lived be a present to give to you, Lord. May the works that I do always be accepted by you. May the days I have left, may I hide it in the clouds of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Make me holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide it in the clouds of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Holy for you. And teach me how to pray. Holy for you, so others can see the way. May the days I have left, may I hide it in the clouds of the rock of ages, I pray, until my life is through. Make me holy for you. Until my life is through. Make me holy for you. Hello, good morning to all of you. हेलो आप सभी को गुड मॉर्निंग. I'm very excited today to share God's word and to share another exciting topic with you. मैं आज बहुत ही खुश हूँ आपसे परमेश्वर का वचन बांटने के लिए और दूसरा एक विषय लेके आपके सामने हाजिर होने के लिए. The topic that we're going to share today and explain is a very important topic, and it is very important for every believer to digest this and to meditate on this concept. आज जिस विषय के ऊपर हम बात करेंगे ये एक ऐसा विषय है जो हर एक विश्वासी को काफ़ी ज़रूरी है और उसे यह बातें जो है जानना काफ़ी ज़रूरी है. So before that, we'll commit ourselves into God's hand. उसके पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे. God, we commit ourselves into your hands. We commit our mind, our tongue, our spirit, our mind, soul into your hand. We ask that your spirit might take over us, to speak through us. Help us to convey your truths in the best manner and enable the viewers and the people to grasp and to know your truths in the correct way. Help us to convey all your truth and the meaning through your spirit, and help us and guide us till the end. In Jesus' name we pray. Amen. आमीन. We will begin with a verse, and that is Hebrews 13:5. हम एक वचन के साथ आरंभ करेंगे और वो इब्रानी की पुस्तक उसका 13 अध्याय का 5 पद है. We will read the verse. It says, "Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee." इब्रानी 13 अध्याय का 5 पद में ऐसा लिखा है, आपकी ज़िंदगी पैसे के लालच से आज़ाद हो, उसी पर इक्तिफा करे जो आपके पास है, क्योंकि खुदा ने फरमाया है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी तर्क नहीं करूंगा. These words are copied from Deuteronomy chapter 31 verse 6. और ये जो वचन है ये व्यवस्था विवरण
उसका 31वां अध्याय का 6 पद से लिया गया है। If you study Hebrews chapter 13 verse 5, in the Greek there are many interesting things to notice. इब्रानी का पुस्तक उसका 13वां अध्याय का 5 पद अगर यूनानी भाषा में आप पढ़े तो वहाँ काफ़ी गहरी बातें और दिलचस्पी बातें आपको मिलेंगी। Now Kenneth West, he was a Greek scholar. He makes a translation of this verse and it is quite interesting. और केनेथ वेस्ट एक यूनानी विद्वान थे जो ये इब्रानी का पुस्तक उसका 13वां अध्याय का 5 पद का अनुवाद करता है। काफ़ी दिलचस्पी तरीका से वो अनुवाद करता है। I will read that verse in this Greek translation and I want you to pay careful attention to this. तो यूनानी भाषा में जिस प्रकार से ये पद लिखा हुआ है मैं उसे पढ़ना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप ध्यान से इसे सुने। It says, "For he himself has said," and the statement is on record, and it says in Greek, I will not cease to sustain and hold you." And then it says, I will not let you down. और इस प्रकार से लिखा है यहाँ पे जो इसका बयान किया हुआ है, यहाँ लिखा है कि मैं कभी भी नहीं और कभी भी नहीं तुझे त्यागूंगा ना छोड़ूंगा। So in Greek, when you see the last sentence, there are three negations in the Greek. He says, I will not, 3 times. He will not leave you, he says. और यूनानी का अनुवाद के अनुसार अगर इसे देखा जाए तो मैं कभी भी नहीं, ये बातें जो है 3 बार कहा गया है। And I really believe God, the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, they are always with us. और मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर और उसका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा ये हमारे संग हमेशा रहते हैं। Now, why God says that He will definitely not leave us? क्यों परमेश्वर कहते हैं कि वो निश्चय कभी भी हमें नहीं छोड़ेंगे? You need to understand this properly. आपको ये ध्यान से समझना जरूरी है। So, if I will tell you that I will be with you in the future, I have to experience the future with you. मान लीजिए मैं अगर आपको कहूँ कि मैं भविष्य में आपके साथ रहने वाला हूँ, उसका मतलब भविष्य का अनुभव मुझे करना ज़रूरी है। But God does not have to experience the future to prove that He will be with you. मगर परमेश्वर को भविष्य का अनुभव करने की ज़रूरत नहीं है। God already is with you in your entire future till your old age. After that, He is making the statement and saying, I will never leave you. परमेश्वर आपके संग भविष्य काल में रहने वाला है और वो रहेगा आपके अंत तक, मगर फिर भी यहाँ पे एक बयान वो कर रहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। So in God's mind, He already saw your future till your old age. He is with you in 2023 to 2024 till your end of life. परमेश्वर के नज़र में आपका भविष्य को वो पहले से देख चुका है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तेरे साथ रहूँगा 2021, 2024, 25 या जब तक आप इस जीवन में रहेंगे। So God has already seen your future. तो परमेश्वर पहले से ही आपका भविष्य को देख चुका है। So notice, God will not leave us because God is omnipresent. तो ध्यान रखिए परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो सर्वभूत है। But omnipresence also means being present in the future as well. मगर सर्वभूत का मतलब यह होता है यानी कि भविष्य में भी उपस्थित रहना। And if He is also present in the future, then He can very truly say, I will never leave you. और अगर ये बात सच है कि वो भविष्य को भी देखता है तो ये बात बिल्कुल सही है जब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। So if I say I will not leave you, there is no guarantee. अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। Because you and I have to face the future. क्योंकि मुझे और आपको भविष्य का सामना करना है। But the reason God is making this promise is He has seen your future already.
मगर परमेश्वर ये वादा क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आपका भविष्य को पहले से देख लिया है। Another important thing I want to bring out, I need to understand this. और एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ और इसे समझना जरूरी है। In Revelation 1:8, Jesus says, I am the Alpha and Omega, the beginning and the end. प्रकाशिक वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय का 8वां पद में यीशु मसीह कहते हैं, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं प्रथम और अंत हूँ। In the Hebrew language, if you want to write Alpha and Omega, Omega will come first and Alpha will come afterwards. इब्रानी भाषा में अगर ये बातें आप लिखना चाहते हैं तो ओमेगा पहला आएगा और अल्फा उसके बाद में लिखा जाता है। Why? Because in the Hebrew language, we write words from the right to left. क्यों ऐसा होता है? इसलिए क्योंकि इब्रानी भाषा में हम जब कुछ लिखते हैं तो दाहिने तरफ से लेकर के बाएं तरफ तक लिखते हैं। So we live our life from Alpha to Omega. We go from one point to another point. तो हम अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं, अल्फा से ओमेगा तक, यानी एक बिंदु से लेके दूसरा बिंदु तक। But God is living, or God sees our life from Omega to Alpha. मगर परमेश्वर जिस नज़र से हमारे जीवन को देखता है वो ओमेगा से अल्फा तक देखता है। What I want to say is that when we are pressing the forward button, God is pressing the rewind button. मैं यह कहना चाह रहा हूँ, जब हम फॉरवर्ड बटन को दबाते हैं तो परमेश्वर रिवाइंड बटन को दबाते हैं। So we are moving forward, but God already knows the end, and He is rewinding and going backwards. हम जब आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर अंत को जानता है, तो इसलिए क्या है, वो कभी रिवाइंड करते हैं। That's when Isaiah 46 it says, God declares the end from the beginning. इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक उसका 46 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर अंत से लेके प्रथम तक उसका बयान करता है। So remember, God never leaves us, तो याद रखिए, परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ते हैं, but we leave God. मगर हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। So we face future, but God creates future. तो हम भविष्य का सामना करते हैं, मगर परमेश्वर भविष्य को उत्पन्न करता है। So you need to understand the statement which I'm going to make. तो ये बयान जो मैं करना चाह रहा हूँ, आपको ये समझना जरूरी है। God does not have a future. परमेश्वर का कोई भविष्य नहीं है, God is the future. क्योंकि परमेश्वर स्वयं भविष्य है। What He's going to do, He knows, and what's going to happen, He knows. क्या वो करना चाह रहे हैं वो जानते हैं, और क्या होने वाला है यह भी वो जानते हैं। So when we cry out to God, we speak to God from today. तो हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो हम लोग आज से ही परमेश्वर को पुकारते हैं। When God answers us, He speaks to us from tomorrow. मगर परमेश्वर जब हमें उत्तर देते हैं तो आने वाले कल के बारे सोच करके उस नज़र के द्वारा हमें वो उत्तर देते हैं। So when God says that He is going to uplift you and bless you at a certain time, His word has already reached in the future. His word is already present in the future. तो जब परमेश्वर आपसे कहते हैं कि वो आपको आशीष करने वाले हैं, तो भविष्य में उसका ये वचन जो है पहुंच चुका है। So you need to understand, a unbeliever's future is on the earth. तो यह बात आपको जानना जरूरी है कि एक अविश्वासी का भविष्य इस पृथ्वी तक ही सीमित है, But a believer's future is in heaven. मगर एक विश्वासी का जीवन और उसका भविष्य स्वर्ग में है। So we need to know our future is not actually front of us. तो हमें यह जानना काफ़ी ज़रूरी है, असल में हमारा भविष्य हमारे सामने नहीं है। Our future is on the top of us. हमारा भविष्य हमारे ऊपर है। Remember, if you are on the top and in a helicopter, you can see all the buildings and all the distance at one event. देखिए, मान लीजिए आप एक हेलीकॉप्टर में यात्रा कर रहे हैं, तो वहाँ से आप नीचे के ओर जो है सारे जगहों को एक नज़र में ही देख सकते हैं। So we live by knowing that our future is in heaven. तो हमारा भविष्य स्वर्ग में है,
यह जानते हुए हम प्रतिदिन का जीवन जीते हैं। In Matthew chapter 6, Jesus says, "Look at the birds of the sky. They do not work or labor, but God feeds them." मत्ती के पुस्तक उसका 6वां अध्याय में यीशु मसीह कहते हैं, आकाश के पक्षियों को देखो कि वे लोग तो काम नहीं करते हैं, मगर परमेश्वर उन्हें खिलाते हैं। Notice this phrase, birds of the air. तो ये पद को जरा ध्यान से देखिए, आकाश के पक्षी। When you come to Jesus, we are like the birds of the sky. हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो हम उन आकाश के पक्षियों के जैसे हैं। So we need to know that we are a bird whose identity is in heaven. We are coming to live on the earth. तो हमें यह जान के रखना है कि हम एक ऐसे पक्षी है जिसका परिचय स्वर्ग का है, मगर हम पृथ्वी में आके जी रहे हैं। So in Genesis 1:1, God created the heaven and the earth. उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश को और पृथ्वी को, यानी स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को बनाया। Why? Because God wanted earth to be the copy of heaven. ऐसे इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर चाह रहे थे कि पृथ्वी स्वर्ग का एक कॉपी बने। That is why when he created man as the image of himself. इसलिए उसने मनुष्य को भी जब बनाया तो अपने स्वरूप बनाया। So we live a life which is from heaven to earth, not from earth to heaven. तो हम एक ऐसे जीवन जी रहे हैं जो स्वर्ग से लेकर के पृथ्वी तक आता है, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक ऐसे जीवन नहीं जीते हैं। All other religions teach us to go from earth to heaven. हर एक जो है धर्म हमें सिखाता है कि हमें पृथ्वी से स्वर्ग तक जाना है। But when you see this spiritual concept found in the Bible, we live our life from heaven to earth. मगर आत्मिक तौर से अगर बाइबल को पढ़े तो ऐसे कुछ बात लिखा हुआ है, हम अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे स्वर्ग से पृथ्वी तक मानो ऐसे ही जी रहे हैं। So before we finish our race, as Paul said, we need to rely on the words when Jesus said, "It is finished." तो हम अपना दौड़ को पूरा करने के पहले, जैसे पौलुस ने कहा, हमें उन बातों पे निर्भर करना है जो यीशु मसीह ने कहा अंत में कि अब समाप्त हुआ। When Jesus said, "It is finished," then our journey began. Then Christians began the journey. जब यीशु मसीह ने कहा कि समाप्त हुआ, तब हमारा यात्रा, तब मसीही यात्रा या विश्वासियों का यात्रा शुरू हुआ। Then Paul can finish his journey. तब पौलुस अपना दौड़ को पूरा कर सका। That is a concept that every Christian believer needs to put inside their heads. ये जो बातें हैं हर एक विश्वासी को अपना दिमाग में रखना है। In the Hebrew language, there is a tense which is called future past tense. और इब्रानी भाषाभाषी में एक काल है जिस काल को हम कहते हैं भविष्य और भूतकाल। For example, in Isaiah 53:5, it says, Jesus is already wounded, and by his wounds we are healed. उदाहरण के तौर से यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में वहाँ पे कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। But there were yet hundreds of years was left for Jesus to come and die on the cross. मगर वहाँ देखिए कई वर्ष, 100 वर्ष और उससे भी अधिक वर्ष ज़्यादा बाकी था जबकि यीशु को आके क्रूस पे मरना था। So some of these things in the Bible is written as a future past. It is yet to happen, but it is written as though it already happened. तो कुछ कुछ वचन बाइबल में ऐसे लिखा है जैसे देखिए वो अब तक हुआ नहीं है, मगर वो ऐसा लिखा है कि जैसे कि हो चुका है। So that is why there are two tenses in the Hebrew language. One is perfect tense, the things which has already happened, and imperfect tense, things which are yet to happen. तो इब्रानी में
हम देखते हैं कि एक काल है पूर्ण काल, जिसमें देखते हैं कि सब कुछ हो चुका है, और दूसरा है अपूर्ण काल, यानी कि अब तक वो होने वाला है। So our Christian life has to be lived from the future past tense. तो हमारा विश्वासी जीवन ऐसे हमें जीना है जैसे कि भविष्य से लेकर के भूतकाल तक। In other words, we need to live in the perfect tense that Jesus has already finished everything on the cross. और ऐसे भी हमें समझना है, हमें एक पूर्ण काल में जीना है, जैसा कि यीशु ने क्रूस पे सब कुछ समाप्त कर दिया। So till we do not understand that Jesus has finished everything and the work of salvation is complete, then your journey will be difficult. You cannot move forward. तो जब तक ये बात को हम अच्छा तरीका से ना समझे कि यीशु मसीह ने क्रूस में सब कुछ समाप्त किया है, तो हम अपना यात्रा को समझ नहीं पाएंगे और सही तरीका से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। That is why we do not fight for victory, but we fight from victory. इसलिए हम विजय के लिए लड़ते नहीं हैं, मगर विजय की दशा में रहते हुए लड़ते हैं। Other people, they walk to sit down. बाकी लोग जो है वो चलते इसलिए हैं ताकि वो बैठ जाएं, But in the Christian walk, we sit down in order to walk. मगर एक मसीह जीवन में ईसाई का चाल ऐसा होना है कि हम बैठते इसलिए हैं ताकि हम चल सके। That is why the Bible says when we believe in Jesus, our place is with Jesus in heaven. We are seated with him in heavenly places. इसलिए बाइबल में ऐसा लिखा है, जब हम यीशु में रहते हैं तो हम जो है यीशु के साथ में उसके पास में हम बैठते हैं। After that, we can walk on this earth. उसके बाद में हम इस पृथ्वी में चल पाएंगे। And so these concepts have to be very nicely meditated upon and thought upon. तो ये सारी बातें जो है हमें ध्यान से समझना है और सोचना है। There are some knowledge and certain knowledge that can really build a faith of a believer. और ऐसे कुछ ज्ञान है जो एक विश्वासी का विश्वास को और मजबूत बना सकता है। And so we need to know, because certain knowledge is, when you get just the knowledge increases your faith. और ऐसे कुछ ज्ञान है जो ज्ञान प्राप्त करते ही हमारा विश्वास मजबूत हो जाएगा। And so may God bless all of you with this word. परमेश्वर आप सबको आशीष करे। May we look to God and pray. तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी आसमानी पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, और जो कुछ भी आज हमने सीखा है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं जो वचन आज बोया गया है उसे जो लोग सुन रहे हैं वो ध्यान से सुने और समझे, और तुझे प्रभु गहराई रीति से समझ सके, और अपना जीवन का ये दौड़ को प्रभु यीशु तेरे नाम में वो लोग समाप्त कर सके, और बाकी लोगों को भी तेरे प्रेम के बारे में बता सके। इसी प्रकार से हमें आशीष करता रहे और हमारे विश्वास को मजबूत बनाते रहे। हम सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, आमीन। Thank you all of you once again to join with us. धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। I really believe you have been blessed, and I believe you will experience God's comfort and presence more and more. मैं विश्वास करता हूँ कि आप आशीष पाए हैं, और यह भी विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का प्रेम आप और महसूस करेंगे। And till we meet again next with another God's word, stay blessed and stay happy. और जब तक हम फिर ना मिले एक दूसरा विषय लेके, तब तक आप आशीष पाते रहिए और आनंद में रहिए। And also don't forget to share this video to someone and bless someone. और ये वीडियो ज़रूर किसी से आप बांटें, और ताकि आपके द्वारा कोई और भी आशीष पा सके। Thank you and have a nice, good week. धन्यवाद। आपका सप्ताह शुभ हो।